If you are fully normal and fit, time wise अगर आप देखें till the age of 60, if you don't work faithfully, prominently, honestly for at least 8 hours a day, you don't have the right to sleep, you don't have the right to eat. आपको अधिकार नहीं है. Then you celebrate your existence. Ultimate satisfaction in life comes by two things: achievements at workplace and enjoying wonderful relationships. ये दो से ही व्यक्ति सुखी हो सकता है. If you want to celebrate your existence, ये प्रिंसिपल दो विचार हमेशा जीवन में रखना कि कार्य क्षेत्र में कुछ पाना है और संबंधों का आनंद लेना है. Enjoying relationships and achievements at workplace are the principal factors of absolute happiness in your human life. Do you agree with me or not? कोई भी बात आप देखेंगे ये दो बात में ही आ जाएगी. These are the principal thoughts. Rest everything is the supporting arena. So with perseverance, with tremendous amount of energy, हमारे गुरु थे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जो अभी ब्रह्मलीन हुए एक वीक पहले. उनके जीवन में जो परसिवियरेंस, जो एनर्जी थी, जो पुरुषार्थ उन्होंने किया, अनबिलीवेबल, अद्भुत. उन्होंने अपने जीवन काल में, आपने यहां नागपुर में हमारा मंदिर देखा होगा. हाउ मेनी ऑफ यू विजिटेड अवर टेम्पल एट नागपुर? यहां, हां, सभी. ऐसे छोटे मोटे 1300 कैंपसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बनाए हैं. 1300. ऐसा एक कैंपस फॉर सोशल सर्विस, फॉर अ सेल्फलेस कॉज करना, एडमिनिस्टर करना, मतलब उनको मैनेज करना लाइफ टाइम, फॉरगेट लाइफ टाइम, डिकेड्स और सेंचुरीज तक वो सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना इज नॉट अ जोक. Perhaps you can set up things, but to make it run for a few years and a couple of decades, it takes a task. इसके अलावा उन्होंने 150 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस बनाई. अपने जीवन काल में प्रमुख स्वामी महाराज दुनिया के 60 देशों में 17,000 गांवों में घूमे हैं. 17,000 विलेजेस इन अ ह्यूमन लाइफ. इमेजिन. आज पृथ्वी पे 7 बिलियन की पॉपुलेशन है. एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है पृथ्वी पे आज. Even those living public lives, I challenge them, anybody who has visited 17,000 villages during his lifetime. आपको लगता है कोई होगा? प्रमुख स्वामी महाराज ने किया है. He has personally read and answered more than 7 lakh letters during his lifetime. He has personally visited, as we have come today here, he has personally visited more than 3.5 lakh homes, offices, shops or factories. He has met more than 2 million people personally. He used to meet 500 on an average per day for 45 years. Staggering world records, unbelievable world records. Beyond imagination world records. In one human life it is possible. हो सकता है. Perseverance, energy and the consciousness of time, as I'm telling you since last about half an hour, 40 minutes. आपने टीवी शोज कहीं देखे होंगे, फिल्म्स भी कहीं देखी होगी. Imagine for example you have seen so far 100 films. मैं तो एक मिनिमम फिगर देता हूं. If you have watched 100 films, 100 into 3, 300 hours you have spent sitting in front of the screen. Have you ever asked the question to yourself, what actually did you gain from it? Great personalities or the people who walk towards greatness, for them, work, hobby, and entertainment, all three same. ये बहुत भारी वाक्य मैंने आपको कहा. Difficult to digest. First of all, you cannot believe your ears.
आई रिपीट, जो महान व्यक्ति होते हैं या महानता की तरफ चलते हैं, उनके लिए वर्क, एंटरटेनमेंट एंड हॉबी, ऑल थ्री इज वन। हमारे लिए सब अलग अलग है। शाम को 6 बजते हैं, आज तो बहुत सुबह से 10 बजे से ऑफिस बैठा हूं, शाम को 6 बज गए, मूवी में जाना पड़ेगा। ये विचार, ये पद्धति और ये कार्य will not lead you to the realization of your dreams. You will not celebrate your existence. Try to make your work, hobby and entertainment the same. Just a change of work becomes your entertainment. Just the change of work can become your hobby. These people, they had this greatness and they enjoy. You celebrate your existence, as I said, dreaming, persevering, putting your energy into it. Even the modern day genetic scientists, they put in a research that only 25% of intelligence, ability and excellence are inherited. 75% of ability, इंटेलिजेंस एंड एक्सीलेंस कैन बी एक्वायर्ड। सो आप ये चिंता मत करना कि मैं पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान ने मुझे, या शायद मेरे नसीब में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, कोई ऐसा स्कोप नहीं मिल रहा है। जेनेटिक साइंसेस जैसे 75% ऑफ इट कैन बी एक्वायर्ड। आप पुरुषार्थ करो, चलते जाओ, होगा अच्छा। दैट इज हाउ यू सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस। The third aspect of celebrating your existence is you design your day and you design your life in a way that you don't have a complaint from any sector. ऑफिस में मैनेजर खुश हैं, लेकिन घर में बीवी और बच्चे खुश नहीं हैं, तो you are not lived a balanced life and you are not celebrating your existence. Many a times I teach 8 plus 8 plus 8 system. Out of the 24 hours that you have, 8 hours is honest, ethical, hard work. Another 8 hours is sleep or rest. Third 8 hours are very important, where few people win and most of them lose. Third 8 hours is 3H and 3F. 3H is health, hygiene and hobby. 3F is family, friends and faith. इसकी कुछ बातें हम आगे करेंगे, लेकिन समय शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे एक तय कर लो समय कि वहां आपको ऑफिस से उठ जाना है और अपने परिवार के साथ वापस पहुंचना है। एक 30 सेकेंड्स की अच्छी स्पीच वीडियो नेट पे है, यूट्यूब पे आप देखना। ब्रायन डायसन थे, वर्ल्ड सीईओ थे कोको कोला के। उन्होंने एक बी स्कूल के कॉन्वोकेशन डे में, वहीं यूएस में ही, एक 30 सेकेंड की स्पीच दी है। वंडरफुल स्पीच, एंड ही हैज गिवन यू अ वेरी गुड मैसेज इन दिस 30 सेकेंड्स। उन्होंने ये कहा कि आप लोग सब एमबी होने वाले हो, देन यू विल वर्क इन कॉर्पोरेट्स another 30-40 years in corporate, and you will come to know that actually in life you are playing with 5 balls. 5 बॉल से आप जगलिंग करें। हम सर्कस पे देखते थे ना, कोई जोकर है, वो 3-4 बॉल से एक साथ खेलता था और एक भी बॉल को नीचे गिरने नहीं देता है। In life you are juggling with 5 balls. The first ball is the ball of work. Second ball is the ball of family. Third ball is the ball of health. Fourth ball is the ball of relationships. Fifth ball is the ball of spirit. Then he put the third sentence, that after 40 years of working you would feel that the first ball, that is the ball of work, is made up of rubber and the rest 4 balls are made up of glass. The ball of work is made up of rubber. अगर आप एक अपॉर्चुनिटी चूक जाएंगे, अगर बॉल वो हाथ में से गिरा, वो रबर का है, वो
वापस आपके पास आएगा. It will bounce back in your hands. That means opportunities will come again. Don't sit till 8 p.m., 9 p.m. and 10 p.m. in your office. You don't owe everything upon this earth, and I don't think you'll be able to drink the whole sea of your profession. भारत में जितने गैस सिलेंडर्स बनाने वाले वो सबका ऑर्डर्स आप पे आ जाए तो क्या करेंगे आप यतीन? पूरे विश्व के जितने गैस सिलेंडर्स बनते हैं वो सब की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे? और कर पाएंगे? नहीं. यू कैन नॉट ड्रिंक द होल सी ऑफ योर प्रोफेशन. लिमिट योर सेल्फ. और दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपको सॉल्व करने आया ना? टेल मी यस और नो. फिर भी वी वांट टू पोक आवर नोज एवरीवेयर. वो बारात निकलती है ना रोड से, आवाज आती है ना, तो अंदर से बाहर निकल के गैलरी में खड़ा हो जाता है. टाइम की कीमत नहीं है ना, गोल फिक्स नहीं है. 15 मिनट खड़ा रहता है, जहां तक बारात का आखिरी आदमी दिखाई देता है ना, वहां तक गैलरी में खड़ा रहता है. आप हंस रहे हो मतलब ये बात तो सही है. हमको तो इसका ज्यादा अनुभव नहीं है, बल्कि कोई कुछ अनुभव नहीं है. आखिरी आदमी तब देखते रहते हो, और फिर अंदर आते हैं, परिवार में 1-2 लोग बैठे होते हैं, वहां आके कमेंट करते हैं. किसी ने पूछा तो है ही नहीं. किसी ने पूछा तो है ही नहीं, फिर भी आके कमेंट देता है. दोनों जम नहीं रहे तो तेरे को जमाने, और अगर नहीं जमा और दोनों के बीच कुछ बना, तेरी जिम्मेदारी. इफ समथिंग हैपन्स बिटवीन द टू, इज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? दो में से एक आपके घर आने वाला. अननेसेसरी वी हैव वेस्टेड thousands of hours so far. Yes or no? Unnecessarily we have wasted thousands of hours. Why would probably Hillary Clinton win over Donald Trump? Don't go into the details. जब जीत जाए तब देख लेना कि अभी ये प्रेसिडेंट बने, ठीक है. क्योंकि वहां कुछ नया कायदा बना, वो नागपुर में जो 3 BHK में आप रह रहे हो उससे कोई रेलेवेंस है नहीं. मिशिगन किसने जीता, उटा किसने जीता, फ्लोरिडा किसने जीता, टेक्सास किसने जीता, उसमें ज्यादा डीप मत जाओ. Anybody who reads newspapers beyond 10 minutes is, आप अपने हिसाब से अपना नाम बना लो. Anybody who reads newspaper beyond 10 minutes doesn't care for time, doesn't care for his life, and actually he's a fool. He doesn't know what he's doing. टाइम्स भी पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, हितवाद भी पढ़ते हैं, फिर नेबर में एक्शन कर देते हैं दोनों, है ना? You don't know what you are doing. You don't know the preciousness of this human life. You don't know how to celebrate it. Take care of it, your time. Come back to your family. Brian Dyson ने लिखा, rest 4 balls are made up of glass. If by some occasion, if you lose it, it will fall on the ground. It will break. If not break, it will develop a crack. If not crack, at least it will not be the same shape again. So take care of these 4 balls. The ball of family, the ball of health, the ball of relationships, and the ball of spirit. वर्जिन अटलांटिक के सीईओ रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बस स्टॉप्स, अ बस कम्स एवरी 3 मिनट्स. अपॉर्चुनिटी है, तक है, वो क्या है? बस स्टैंड है, और वहां बस हर 3 मिनट में एक बार आती है. तो अब चिंता मत करना, काम तो दूसरी बार भी मिलेगा, लेकिन गो बैक टू योर फैमिली. ब्रायन डायसन ने अंतिम सेंटेंस उस प्रवचन में कहा, so get to work on time, work effectively during your working hours, and get back to your family on time.
This is celebrating your existence. Get to work on time. Work effectively during your working hours. And get back to your family on time. This is the motto. He said, I practiced this for 40 years in my life, and I think that I am the happiest person upon this earth. महीने में 5 दिन आपको छुट्टी. घर बैठने की बात नहीं कर रहा हूं. रात को 7:30 बजे के बाद ऑफिस में बैठने की छुट्टी. समझ सकते हैं, कभी काम होता है, इमरजेंसीज होती हैं, अर्जेंसीज भी होती हैं. ये मत सोचना कि मैं साधु और ऐसे ये बात कर रहा हूं थियरी. आई कम फ्रॉम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, द BAPS स्वामीनारायण संस्था, which is as big as Rotary or as big as Lions Club. मैंने बोला ना, 1300 ऐसे कैंपसेस हैं. We saints are directly involved in the administration and management of these campuses. बड़ौदा में हमारा मंदिर है, इतना ही बड़ा है. Just opposite the road of the temple, we have a 100-bed multi-specialty hospital, state-of-the-art hospital. यूरोप और अमेरिका में जो आप हॉस्पिटल देखेंगे, ऐसी हॉस्पिटल है हमारी. And running at only 30% of the costs of all the medical services that you find in any other part of the city. Just besides it, we have a 200 students hostel where children going for pharmacy, medicine, engineering courses, they stay there. Behind that, we have a 1200 students residential English medium school. यहाँ भी हमारी बहुत बड़ी स्कूल है. I think how many students? 1700 students की हमारी English medium school यहाँ है. We saints, we are directly involved in the administration, the management of all these institutes. So we know what is work. We know what is work-life balance. We know what is dividing your time and actually adjusting your time and actually managing your time between all priorities and needs of life. It's not just I'm talking to you theoretically. So you must spend quality and quantity time with your family, that is celebrating your existence. If you are not alongside with your parents in the last days of their life, you have missed out not just a humble service to your parents, but you have missed out of your grading as a human being. Pramukh Sai Maharaj was once asked, why do old age homes exist in the society? And Pramukh Sai Maharaj spontaneously replied, because child care centers exist. Old age homes exist because child care centers exist. माता पिता को समय नहीं था, दोनों का करियर बनानी थी, तो बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर्स में रख दिया. बच्चा ने बड़े होके वही कॉइन्स में पेमेंट किया. अब उसके पास समय नहीं है तो आपको ओल्ड एज होम्स में रख दिया. सिंपल. ही हैज पेड यू बैक इन योर ओन कॉइन्स. सो समय अपने परिवारजनों के लिए निकालना वो बहुत जरूरी है. Another, that is balancing your time and balancing your, that is time between your work and your family and your relationships, is celebrating your existence in life. Another good aspect of celebrating your existence, ये आपके attitudes है, आपके अभिगम है, आपकी विचारधारा है, आपके दृष्टिकोण है. प्रसंग तो आपके जीवन में कोई बना, परिस्थिति ऐसी कोई खड़ी हो गई, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपके जीवन में से चला गया, कोई काम आपको मिला, कोई काम आपको नहीं मिला, कोई टेंडर आपने भरे लेकिन वो पास हुए नहीं हुए, आपके मन में जो इच्छा थी उसके मुताबिक कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, जिस व्यक्तियों के साथ आपको संबंध रखना था वो रहा या नहीं रहा, कुछ भी जीवन में बना, उस वक्त आपके विचार क्या रहे, स्थिरता रही कि नहीं, अभिगम क्या रहा, दृष्टिकोण क्या रहा, that makes you celebrate your existence.
सबसे ऊंचाई की बात तो श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ शब्द का उपयोग करके भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। लेकिन ऑन अ डे टू डे लेवल, डे टू डे बेसिस, some thoughts are very much essential to be steady in our minds and hearts to make us more stable. प्रमुख साईं महाराज वॉज वंस इन न्यूयॉर्क। रूम बहुत छोटी थी। किसी ने कहा कि स्वामी ये रूम बहुत छोटी है जहां आप विराजमान हो। प्रमुख साईं महाराज ने इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली कहा कि छोटी रूम अच्छी है, पावर कम यूज होता है। Just 1 week after that, Pramukh Sai Maharaj was in Toronto, Canada, and his residence was newly made and the room was spacious. वही व्यक्ति ने प्रमुख साई महाराज को कहा कि स्वामी ये बड़ा रूम है, ये अच्छा है। प्रमुख साई महाराज ने कहा हां, बड़ा रूम है, वो अच्छा है, ज्यादा लोग अंदर एक साथ बैठ सकते हैं। In 99% of the situations in your life, you must play the role of water taking the shape of the vessel. तो आप सुखी रहोगे। In 99% of the situations in life, you must become water, take the shape of the vessel. पानी को बड़े टब में रखते हैं तो टब का शेप ले लेता है, छोटे से ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का शेप ले लेता है, एक बाउल में रखते हैं तो बाउल का शेप ले लगता है। Only 1% of the situations in life are such that you need to put forward a force to make your work go through. 99% of the situations, especially in personal life and social life, forget the business life or commercial life, एक different life है, लेकिन personal और social life में 99% of the life is such that you need to adjust. Adjustment, acceptance, बहुत बड़े शब्द है। You will celebrate your existence, ये शब्द आप जीवन में रखेंगे तो छोटी छोटी बातों में अपना स्टेबिलिटी गुमा मत देना। Don't allow your stability to destabilize you for smaller things, smaller happenings in life. अगर हम प्रमुख स्वामी महाराज के जगह पे होते तो हम बोलते यहां ये छोटी रूम है, बड़ी करनी चाहिए, और बड़ी होती तो बोलते कि ये है वो है। प्रमुख स्वामी महाराज ने किसी को कहा कि ये फार्गो कार जो आप यूज कर रहे हो बड़ी कार है, उसमें 8-10 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपशुकन है क्योंकि पिछले 1 साल में इसका 3 बार एक्सीडेंट हुआ। प्रमुख साईं महाराज ने कहा नो, इट्स अ गुड ओमेन, ये अपशुकन नहीं है, शुकन है ये कार। तो लोगों ने कहा क्यों? 3 बार एक्सीडेंट हुआ, कोई मरा नहीं, किसी को कुछ लगा नहीं। दृष्टिकोण, अभिगम। Why something is happening to me? If you keep on asking this question to yourself, you will be a distressed one. Anything happening to me is for my good and progress. Take it that way and you will celebrate your existence. मेरे जीवन में जो कुछ भी बन रहा है वो मेरे अच्छे के लिए है, मेरी प्रगति के लिए है। You celebrate your existence. अस्तित्व का आनंद आएगा, जीवन में बहुत आनंद आएगा। किसी ने यहां पैट मारी, प्रशंसा, और यहां मारी तो जस्ट हाफ अ फीट अबव। दिस इज कॉल्ड अ पैट, दिस इज कॉल्ड अ स्लैप। एक्शन तो वही है, लेकिन पैट में आप खुश हो जाते हैं, स्लैप में दुखी हो जाते हैं। लेकिन इतना ही है कि यहां अच्छा काम किया और अब अच्छा करना है। यहां से क्या सीखना है? अच्छा करना है, सिंपल। प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने कहा कि कहीं लोग आपका जीवन और आपका कार्य कम जानते हैं या कुछ मन में घृणा रखते हैं, तो आपके बारे में कभी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी बात भी लिखते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि ये लोग दे आर गिविंग अस वार्निंग दैट यू डोंट डू दिस इन फ्यूचर। हरकिशन मेहता ने प्रमुख स्वामी महाराज के इंटरव्यू लिया था और प्रमुख स्वामी महाराज को कहा था कि कोई आपकी टीका करे तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर कोई हमको क्रिटिसाइज करे तो हम आंख बंद करके सोच लेते हैं कि जो टीका उन्होंने की है वो सही है। अगर सही है तो हम कुछ उसमें वी चेक आउट। एंड हरकिशन मेहता आस्क्ड इफ इट्स रॉन्ग then Pramukh Swami said, we don't go to fight with him. I pray
that God inspires him with the right kind of thinking. प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छा अभिगम सिखाते हैं. ये अभिगम, ये दृष्टिकोण, ये एटीट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वरना छोटी छोटी बातों में दिन में 10 बार हम मुंह लटका के बैठ जाते हैं, है ना. अभिगम जो कुछ भी बन रहा है is for my good and for my progress. I tell you, if in today's talk, if you don't remember anything, take this one sentence with you in your hearts and minds. And that sentence is, everything that is happening in my life is happening for my good and for my progress. If I know how to look at it, how to judge it, and how to accept it. ये एक वाक्य घर लेके जाना. You will celebrate your existence till the last breath of your life. किसी ने आपके साथ संबंध रखा, अच्छा है. कोई आपकी मनपसंद व्यक्ति आपके जीवन में से चली गई, भगवान की इच्छा. प्रयत्न करना 2 बार 3 बार संबंध सुधर जाए. फिर भी अगर वो व्यक्ति की इच्छा नहीं है, wish him good luck, do prayers for him, give him a big goodbye, turn your face and delete his number from the mobile. Simple. सुखी रहोगे. वरना जितनी बार मोबाइल स्क्रॉल करोगे और वो व्यक्ति का नाम आए, ये हो जाएगा. वो करने की जरूरत नहीं है. एनीथिंग हैपन्स फॉर गुड. जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है. भगवान हमारा दुश्मन तो नहीं है. जो हमारे तकदीर के गड़वैये हैं, he is not our enemy. Do you wish anything wrong for your children? Tell me yes or no. Then we are God's children. How would he wish something wrong for us? He is constantly doing good for us. He is constantly trying to help us. लेकिन हमारे पूर्व के कहीं कर्म हैं, वो कर्म भी डाइल्यूट करके थोड़ा फल हमें देते हैं. उसमें हम बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया. कुछ प्रगति के लिए, कुछ अच्छे के लिए. Put that mindset. If it doesn't enter, put it forcibly. Only then you will celebrate your existence. हम तो अगर कोई रिसेप्शन में गए हैं, पार्टी में गए हैं, तो वहां से वापस आके घर आके क्या चर्चा होती है देख लेना. इसने ये पहना था, ये नहीं पहना था, इसको ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए. वो मेरे सामने उसने देखा लेकिन फिर पास नहीं आए. मेरे सामने उन्होंने देखा लेकिन फिर मुंह फिरा दिया. यही चर्चा होती है ना. टेल मी यस और नो क्लियरली. इसलिए आप पार्टी में गए थे, इसलिए आप रिसेप्शन में गए थे. आप वहां आनंदित होने के लिए गए थे. और क्या हो के आए? दुखी हो के आए. इसने मेरे सामने देखा नहीं, वे मेरे पास आके नहीं बैठे. उसने वहां तक आए थे, हम लोग खड़े थे, लेकिन कुछ मेरे हाथ में प्लेट थी, फिर कुछ खाने का आग्रह नहीं किया. डोंट लिव विथ टू मच एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ. यू विल नॉट सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस. हमारी तकलीफ यह है, हमारा मन इतना कमजोर है कि कोई हमारे सामने नहीं देखे तो भी तकलीफ, कोई देखे तो भी तकलीफ. वो मेरे सामने क्यों देखता होगा? आंसर इज वेरी सिंपल. आंख है इसलिए देखता था. What if the cat goes from left to right, crossing your path? Tell me and what it is when it goes from right to left, crossing your path. बोले आप बोले. अब शुकन ये सब हम मानते हैं. As you are going somewhere, the cat is also going somewhere. Simple. बहुत हम ज्यादा विचार कर लेते हैं छोटी छोटी बातों में, इसलिए डोंट सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस. थिंग्स हैपन, लेट देम हैपन. डोंट टेक इट टू सीरियसली. द थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ हैज ओनली 10% इम्पैक्ट ऑन यू. 90% of the impact depends upon how you take it.
जो कुछ भी आपके जीवन में बन रहा है ना, उसकी इंपैक्ट 10% ही है। आप कौन सी दृष्टि से उसके सामने देखते हो, हाउ यू टेक इट इन योर लाइफ, द इंपैक्ट इज 90%। और 90% में आपके पास चॉइस है। डोंट गिव इट इंटेंसिटी, योर रिस्पॉन्स टू इट क्रिएट्स द इंटेंसिटी एंड दैट इट इफेक्ट्स यू। हमने देखा है प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भव्य सम्मान हुए हैं। कनाडा और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उनका स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान हुआ था। अमेरिका में 40 से भी ज्यादा सिटीज की टू द सिटी प्रमुख स्वामी महाराज को दी गई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 6 बार प्रमुख स्वामी महाराज का नाम है। बड़े बड़े सम्मान भी हमने देखे हैं, और कहीं अज्ञात लोगों ने उनका अपमान भी किया है। ऐसे भयंकर अपमान भी हमने देखे। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज को हमने स्थिर देखा है। नॉट अ व्रिंकल ऑन हिज फेस हैज चेंज्ड। और हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के रिसेप्शन में जाते हैं, और आपका मूड अगर 1 मिनट में मुझे उतार देना है तो मैं उतार सकता हूं। पता है कैसे? पहले आप प्रॉमिस दे, आप ये प्रयोग नहीं करेंगे, फिर मैं आपको बताऊं। एक आदमी को उनके पास भेजना है कि ये तो क्या पहन के आया इधर, इतना बोल के फिर वापस आ गए। 5 मिनट के बाद दूसरे आदमी को भेजना कि दिस डजंट सिंपली सूट टू द ओकेजन, आई डोंट थिंक यू हैव पुट ऑन द राइट टाइप ऑफ क्लोथ्स, एटलीस्ट ये कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा है। 5 मिनट के बाद तीसरे आदमी को भेजना, व्हाट अ हॉरिबल थिंग दैट यू वांट टुडे। वो व्यक्ति पार्टी छोड़ के चला जाएगा। देखना देखना मतलब प्रयोग मत करना। हमारे माइंड्स इतने मीन और चीप हैं। नाउ लेट मी पुट फॉरवर्ड अ वेरी क्लियर फैक्ट that we live according to people's opinions. We don't live according to our own life. हाँ या ना? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचते होंगे, ठीक है, समाज में है, मर्यादा की दृष्टिकोण से इसका विचार करना है, लेकिन उसके मुताबिक ही जीवन जीना है। फॉरगेट इट। ऑस्ट्रेलियन नर्स ब्रॉनी वेयर ने एक पुस्तक लिखा है, द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। विश्व प्रसिद्ध बना यह पुस्तक। न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर्स लिस्ट में फॉर 60 वीक्स इट टॉप द लिस्ट, व्हिच इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये नर्स क्रिटिकली इल पेशेंट्स को केयर करती थी, और इसमें शी हैज पुट डाउन द एक्सपीरियंसेस ऑफ मोर देन 1000 पीपल अक्रॉस horizons, from a carpenter to a professional to a social worker to an MD or a chairman of a giant MNC. ये लोग जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे, तब ब्रॉनीवेयर ये नर्स ने ट्रीटमेंट करते वक्त उनके पास एक फॉर्म भरवाया कि at this moment in your life, when you know that you are going to die, because they were critically ill, when you know that when your relatives know that you are going to pass out, when the medical team taking care of you, they know that you are going to pass out, what exactly do you cherish in your life and what you regret in your life? उसमें से जो 5 कॉमन रिग्रेट्स थे, ये पुस्तक में लिखे हैं, द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। उसमें पहला रिग्रेट क्या है पता है? Why did I work so much in my life? मतलब मैंने गधे की तरह इतना काम क्यों किया। दूसरा रिग्रेट है, I should have spent more time with my family and my friends who loved me and I loved them, near and dear ones. I should have spent more time with them. तीसरा रिग्रेट ये लिखा है, जो भी बात मैंने की, कि I should have cultivated the bravery in my heart to live a life according to my choice and not the choice and opinions of the people around me. Unless and until you are not a social harassment, unless and until you are not offending anybody, live a life of your choice. Then you will celebrate your existence. You will enjoy your life.
I've taken Diksha since last 25 years. After finishing my engineering in 1991. And since 25 years, I've been wearing the same colored clothes and the same style. You wear it for 1 week and then we'll talk what it happens to your mind. 1 week तक एक ही कलर के कपड़े आप पहनो तो सही एक बार. We eat in wooden bowls, mixing everything and putting water into it. I don't have a family. I don't have a bank account. I don't wear ornaments. This is the norm and discipline of the Swaminarayan Sampradaya. I have not touched money. And we are brahmacharis. और ये सब आपके पास है. You have a bank account, you have gold, you have ornaments, you have the best type of clothes, you have the branded items that you wear. ये हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी मेरे चेहरे पे कुछ दुख लगता है आपको? लगता है कुछ? We are celebrating our existence because you know what you are living. You have a clear dream, clear goal, and the path you are walking, a path that you select in your life, and you enjoy your existence. As simple as that. वरना आप सब तो बुद्धिशाली हो, सांसारिक हो, बिजनेस करते हो. Why should you call a tyagi to talk to you? Why should you call a saint, a monk to talk to you? Because work can be taught by somebody. Academics can be taught by somebody. Money making can be taught by somebody. Life can only be taught by those who have lived life. So this is life. So attitudes, आपके जो अभिगम हैं, आपके जो दृष्टिकोण हैं, 12:15 हो गए. In 5 minutes I'll finish. Attitudes, अभिगम जो दृष्टिकोण हैं, वो हमेशा सही रखना. और सही में इतना ही प्लेटफॉर्म है. Whatever happens in my life happens for my good and my progress. Simple. That will give you ultimate stability in life. और जो आखिरी बात है, वो faith in God. भगवान में श्रद्धा रखना कि भगवान ये जगत के कर्ता हर्ता है, मेरे पिता है, मेरी माता है, और इनकी कृपा से मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा. उनके आशीर्वाद ही होंगे. A good day, enjoy. A bad day, learn something. And a worst day in your life is an experience. तीनों चाहिए ना? What does a plate of a full dinner contain? सब रस आ जाते हैं ना? If I give you a full plate of sweets, will you be able to enjoy your meal? You need all tastes. In the same way, life में सब टेस्ट चाहिए. आनंद भी चाहिए, सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए, कड़वा अनुभव भी चाहिए, पैट भी चाहिए, स्लेप भी चाहिए. That will make you a complete human being. So when there is rejections and failures in life, take it positively. आपको पता है अभी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में टॉप एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट में इंटरव्यू में सबसे पहला और आखिरी मतलब एक ही प्रश्न क्या पूछते हैं? क्योंकि ये सब पोस्ट होती है ना, वहां तनख्वाह तो होती है 20 करोड़ पर एनम, 30 करोड़ पर एनम, 50 करोड़ पर एनम. आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि पृथ्वी पे 10,000 लोग ऐसे हैं प्रोफेशनल्स जिनकी तनख्वाह 100 करोड़ से ज्यादा है. दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, दे आर कर्मचारी नंबर 1, the CEOs, the MDs or the executive chairmen. उनका जो इंटरव्यू होता है तब एक ही प्रश्न पूछा जाता है. अभी एक नया ट्रेंड खुला है और वो प्रश्न क्या है? क्योंकि he has already got an experience of like 20 years working at the top corporate level, isn't it? And he has managed 25,000 crore rupees, 50,000 crore rupees, 1 lakh crore rupees every year. So he has not to be asked about administration, about management, about human resources, nothing. Project planning, उनको पूछना नहीं है. तो उनको क्या पूछते हैं इंटरव्यू में? आपके जीवन में कोई बड़ा सेटबैक आया है?
आपके प्रोफेशनल करियर में कोई बड़ा फेलियर आया है? कोई सीवियर डिप्रेशन में आप चले गए हो कोई परिस्थिति में, वो परिस्थिति का आप वर्णन करें। उस वक्त आपने विचार क्या रखे, भावनाएं क्या रखी, और किस प्रकार से अपना उस दिनों के वक्त आपने समय कैसे पसार किया, वो आप डिस्क्राइब करें। हाउ डिड यू मीट, रादर हाउ डिड यू ग्रीट फेलियर्स एंड सेटबैक्स इन योर लाइफ, वो आप बताएं। उस वक्त अगर आप में स्ट्रेंथ रही, करेज रही, कॉन्फिडेंस रहा, एटीट्यूड सही रहे, आप जीवन जीत गए। अच्छी परिस्थिति में तो सब कोई कूदते हैं और आनंदित होते हैं। गंभीर परिस्थिति जब आ गई, चलो आनंदित तो नहीं होते हैं, स्थिर तो रह सकते हैं ना। यही पूछा जाता है। तो ये स्थिरता भगवान में श्रद्धा से आती है। मंदिर में जाते हो, आरती के बाद कोई हाथ में प्रसाद देता है, वो भी प्रसाद है। और भगवान ने निर्णय लिया कि आपकी धर्म पत्नी को 40 साल की उम्र में कैंसर हो गया और मृत्यु हो गई, वो भी प्रसाद है। Now I'm talking of the highest level of stability in life. आपका 22 साल का लड़का हार्वर्ड में एडमिशन मिला है एमबीए में, 2 साल एमबीए करके with flying colors he passed out, he came back to your house, he got a wonderful job, and after 2 years at the age of 26 he met a car accident and he passed away. हार्वर्ड में एडमिशन मिला था, वो भगवान की इच्छा थी। 26 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, भगवान की इच्छा। आप ये बोलेंगे कि स्वामी आप साधु हैं, आप तो ये बात आसानी से कर सकते हैं, हम सांसारिक के लिए बहुत कठिन है। लेकिन कठिन है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये समझदारी रखनी बहुत जरूरी है, वरना यू विल लूज योर लाइफ। फॉरगेट सेलिब्रेटिंग। हमने देखे, कहीं गृहस्थ को देखा है, हम परिचय में 5-5, 10-10, 15-15 साल के बाद भी स्टेबल नहीं हुए हैं। उनको आप याद कराओ, आपका रोने लगते हैं 15 साल के बाद। अभी ये मृत्यु लोग है, सबको एक दिन जाना है। सो दैट फेथ इन गॉड, इट एक्चुअली स्टेबिलाइजेज यू। दैट फेथ इन गॉड, इट एक्चुअली स्टेबिलाइजेज। कोई भी परिस्थिति में, तुकाराम थे, भगवान में बहुत श्रद्धा थी, भगवान के बड़े भक्त थे। गांव वालों ने एक बार तय किया कि तुकाराम का हम ऐसा अपमान करें कि वे गांव छोड़ के चले जाए, क्योंकि गांव में युवाओं को व्यसन मुक्त करते हैं, कहीं लोगों को, हम लोग साथ में बैठे जुआ खेलते हैं तो वो निषेध करके सुधार देते हैं, इसलिए गांव को बिगाड़ते हैं तुकाराम। तो सबने तुकाराम को गधे पे बिठाया, उल्टा बिठाया, गधे की पूंछ हाथ में दी, ऑल हिज हेयर्स शेवन, और उस पे चूना लगाया और गले में ब्रिंजॉल का एक हार डाला और गांव में घुमाया। तुकाराम की पत्नी इतनी डिप्रेस हो गई, देखा कि मेरे पति का ये अपमान, उन्होंने तो ये सोच लिया कि मैं सुसाइड कर लूं। पूरे गांव में घूमकर जब तुकाराम वापस घर आए, गधे पे से उतरे, हंसते मुंह घर में अंदर आए, और उनके पत्नी ने कहा कि क्या ऐसा अपमान, हमको गांव छोड़ के जाना है? मैं तो समझती हूं मैं सुसाइड कर लूं। तुकाराम ने कहा उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। उनकी पत्नी ने कहा क्या, सब कुछ तो गलत हुआ है? तुकाराम ने कहा देखो, जब हमारी शादी हुई थी तब बारात नहीं निकली थी, प्रोसेशन नहीं निकला था, आज निकला। See the positivity. I was talking of this example to like about 1,000 professionals at the Hyderabad Management Association. I told them, in a balance, if you put all the works of modern day research, all the books on positivity, positive thinking, written by modern day authors and thinkers on one pan of the balance, और दूसरे पैन में सिर्फ ये तुकाराम का प्रसंग रखो, वो झुक जाएगा। इतनी ताकत है ये प्रसंग में। तो तुकाराम ने कहा कि जब शादी हुई थी तब बारात नहीं निकली थी, हम लोग बहुत गरीब थे, ऐसे ही शादी कर ली थी,
तो आज गांव वालों ने इकट्ठे होके बारात निकाली, प्रोसेशन। तू इसको गधा देखती है, मैं तो घोड़ा देखता हूं। शानदार, पूरा गांव NFOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, हम गरीब हैं, 6 महीने से बाल कटवाए नहीं थे, पैसे नहीं थे, इन्होंने कटवा दिए और ऐसे काटे, अब 6 महीने तक चिंता नहीं, पूरा शेव कर दिया। फिर उन्होंने यहां चूना लगाया था, अच्छा है, डैंड्रफ नहीं होगा, एंटीसेप्टिक हो गया। और ये बैंगन का हार पहनाया है, ये निकाल। 1 वीक तक, पिछले 7 दिन से हमने कुछ वेजिटेबल नहीं खाया। अब ये 7 दिन तक हमारा दोनों के लिए चला। दरवाजा बंद कर, आनंद कर, पका रसोई, खाएंगे, सो जाएंगे। दिस कम्स बाय फेथ इन गॉड। तुकाराम को ये भगवान में श्रद्धा थी कि जो कुछ भी बन रहा है उसमें अच्छा ही सोचना, क्योंकि बुरा सोचने के लिए टाइम नहीं है। दिस इज 70 और 80 ईयर इनिंग्स। उसमें से कितना हुआ दिलीप भाई? कितना हुआ? ज्यादा चले गए, कम बचे। डिप्लोमेटिक आंसर। ज्यादा चले गए हैं, कम बचे हैं। डिप्लोमेटिक आंसर। I tell you, life is too short. In life, when you don't have time for love, I don't know why people are finding so much time for hatred. प्रेम करने का समय जीवन में कम है, तो घृणा करने का समय लोग कहां से निकाल देते हैं वो पता नहीं है। तो तुकाराम ने ये भगवान में श्रद्धा रखी कि जो कुछ भी बन रहा है भगवान की इच्छा से बन रहा है, तो पूर्ण श्रद्धा रही और जीवन में शांति रही। तो ये भगवान को रोज प्रार्थना करना, अपनी स्थिरता के लिए और अपने संबंधी जन मित्रों के लिए भी, उनका भी अच्छा हो। हमारे गुरु योगी जी महाराज बोलते हैं, भगवान सबका भला करे। क्रेडिट ले लो, रॉयल्टी ले लो पुण्य की। और वैसे भी आप किसी का बुरा इच्छोगे, उसका तो बुरा जब होगा न होगा वो अलग बात है। यू आर स्पॉइलिंग योर इंटरनल एटमॉस्फियर। यस और नो? किसी का बुरा सोचने से यू आर एक्चुअली स्पॉइलिंग योर इंटरनल एटमॉस्फियर। जहां हेवन क्रिएट करना है वहां आप हेल क्रिएट कर रहे हो, है कि नहीं? दिस इज सेलिब्रेटिंग योर एग्जिस्टेंस। सो ये थोड़ी बातें हैं। अगेन जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट, एक सपना लिखना, एक ड्रीम क्रिएट करना, पुट योर परसिवियरेंस, पुट योर एनर्जी इनटू इट। थर्ड थिंग इज take care of your time, a good work-life balance, spend ample amount of time with your family, then live a life full of confidence with proper kind of attitudes. Take everything positive in your life. Whatever happens in my life happens for my good, happens for my progress. Anything happening in my life is always for my good. Take it, that attitude in your life, and put a mindset, if even forcibly, put it forcibly in your mind, that everything is happening for my good and for my progress, and ultimately God is my creator, is my father, he is my destiny creator. Whatever he has destined in my life is for my good. It is his blessings. Let things happen. 10% impact of things happening, 90% of it is how you take it. जो भी प्रसंग जीवन में बना, स्थिरता से एक्सेप्ट करना। Acceptance of everything is a big stress reliever in life. Acceptance of everything is a big stress reliever. So ये थोड़े विचार जीवन में साथ में रखेंगे, बार बार दृढ़ता करेंगे, you will be able to celebrate your existence. My all prayers for all of you today, for all your family members, all your near and dear ones, that they, with this thought process and this way of life, they celebrate their existence. May my Guru Pramukh Swami Maharaj and Pujya Mahant Swami Maharaj bless you all. Thank you very much.